मैम माइक बंद है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Can you see my slides? यस मैम। Yes, Okay. ma'am. So today in this lecture we are going to discuss about primary metabolite and secondary metabolites. So what are metabolites? Metabolites are the end product of the process of metabolism where anabolism and catabolism take place and lead to formation of metabolites. Okay, plants के अंदर भी बहुत सारे metabolites बनते हैं. They are categorized into two categories: primary metabolite and secondary metabolites. है ना? Primary metabolites क्या होते हैं? कुछ idea थोड़ा सा? Okay, chalo, I will discuss this later. Metabolites are intermediate products produced during the metabolism, catalyzed by various enzymes that occur naturally within the cell. है ना? बहुत सारे process होता है plant के अंदर भी, है ना? जिसके अंदर उस process के दौरान जब metabolism होता है, breakdown हो रहा है, कुछ formation हो रहा है, तो बहुत सारे by-products बनते हैं, है ना? कुछ cell खुद use करता है, कुछ product plant खुद use करता है, कुछ cells खुद use करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम use नहीं करते, but they are the part of our cell. Okay? एंड ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स एंटीबायोटिक्स बनते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स बनते हैं, बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं. द टर्म मेटाबोलाइट यूजुअली यूज्ड फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल. जो टर्म मेटाबोलाइट है यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूल के यूज किया गया है. द वेरियस फंक्शन ऑफ मेटाबोलाइट इंक्लूड फ्यूल, एनर्जी देना, स्ट्रक्चर डिफाइन करना, सिग्नलिंग करना, कैटालिटिक एक्टिविटी करना, डिफेंस इंटरेक्शन विद इन द अदर ऑर्गेनिजम्स. है ना? ये सब प्लांट के अंदर या सेल के अंदर बन रहा है. मेरे अंदर एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है. दैट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और जो उस प्रोसेस के दौरान जो केमिकल बन के आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे साइकिल का एक एंड प्रोडक्ट होता है ना? अगर आप टीसीए साइकिल का देखोगे तो एक एंड प्रोडक्ट है जो पायरुविक एसिड साइकिल में जाता है, राइट? है ना? सबका एक एंड प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, तो दीज आर मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट प्रोड्यूस बाय प्लांट, ह्यूमंस एंड माइक्रोब. सबके द्वारा मेटाबोलाइट बन, बिकॉज the process of anabolism catabolism is done in the cell. तो हर सबके अंदर मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं. Human have 2500 metabolites like prostaglandin produce a metabolite arachidonic acid produces prostaglandin. अब एक मेटाबोलाइट बनाता है जो arachidonic acid कहा जाता है. Both the molecules have the same physical property, functional group, and are linked by series of enzyme catalytic reactions. कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड हार्मोन्स, कैटेकोलामाइन्स अराइजेस फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन. तो ये हमारे सब मेटाबोलाइट्स है जो एक सेल के अंदर बनते हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्लांट के अंदर दो मेटाबोलाइट बनते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? These are the chemical compound produced during the growth and development. ये ऐसे chemical compound है जो plant अपने growth और development phase के दौरान बनाते हैं. They are also involved in the primary metabolic process of respiration and photosynthesis. They are also involved in the primary metabolic process. ये primary metabolic process के दौरान ही respiration और photosynthesis के दौरान बनते हैं. The primary metabolites are formed in the growth phase. एक plant के growth phase के दौरान बनते हैं. They maintain the physiological function of the body and are known as central metabolites. They are intermediate product of anabolic metabolism, which are used by cell for the formation essential macromolecules. जो plant खुद use करता है अपने essential macromolecules को बनाने के लिए, वो होते हैं primary metabolites like amino acid, vitamins, organic acid. Some of the primary metabolites produced industrially. Alcohol is the major primary metabolite produced on large scale industry. Secondary metabolites. These compounds are produced by the organisms that are not required for primary metabolic process. हम एक सिंपल लैंग्वेज में प्राइमरी मेटाबॉलिज्म और प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को ये भी बोल सकते हैं. जो प्राइमरी प्रोडक्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, दे आर रिक्वायर्ड बाय द सेल इटसेल्फ फॉर देयर मेटाबॉलिक डेवलपमेंट. Where secondary metabolites are not required for primary metabolic process. वो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जरूरत नहीं होते हैं. However, they can be important ecologically for or otherwise. उसके अलावा बट वो हमारे लिए इकोलॉजिकली और ऐसे बहुत अदर इंपॉर्टेंस रखते हैं. बहुत सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है जो हमारे प्लांट को डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं. बहुत सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है जो प्लांट को एज अ फूड्स एज अ मेडिसिनल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, है ना. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंसिडर टू बी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म. सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो बनते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट को यूटिलाइज करके ही बनते हैं. जैसे आप अभी आगे जितने भी फार्माकोफोर 2 में पढ़ोगे तो आप इसी के आगे पढ़ोगे
कि हाउ एल्कोलाइड्स आर सिंथेसाइज्ड. एल्कोलाइड सिंथेसिस हो रहा है तो एक प्राइमरी मेटाबोलाइट का एंड प्रोडक्ट जो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे का हुआ उसका एंड प्रोडक्ट जो बना उस एंड प्रोडक्ट विल एक्ट एज अ स्टार्टर फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन. इसलिए कहा जाता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम secondary metabolites are derived from primary metabolites because they derived by the pathway in which primary metabolites involved, क्योंकि वो उसी pathway से आगे चल के बनते हैं जहाँ primary metabolites involve होते हैं. Example, antibiotics, toxins, pheromones, enzymes inhibitor, etc. Streptomides and related acetomides are in source of novel secondary metabolites. Now this is the difference between primary metabolites and secondary metabolites. Primary metabolite required for growth and maintenance of cellular function. Okay, primary metabolite required for the growth and maintenance cellular function, मतलब cell खुद use करता है वो product को. Secondary metabolites involved in ecological function. Okay, primary metabolite occur at the growth phase and secondary metabolite occur at the stationary phase. Produce in large amount and easy to extract. बहुत सारा ज़्यादा amount में बनता है secondary primary metabolite और बहुत easily extract है. One of the example is carbohydrate, vitamins, ethanol, lactic acid. है ना, ये primary metabolite जो synthesize करता है plant और वो खुद के utility के लिए. And produced, whereas secondary metabolites are produced in small amount and difficult to extract. Secondary metabolites जो है वो बहुत कम amount में बनते हैं. जैसे आपका अल्कोलॉइड्स है, आपका फ्लेवोनॉइड्स है, आपका टेनिक एसिड है, आपका टेनिन्स है, आपका टर्पेनॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, ये सब आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना. ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट के अंदर बहुत कम अमाउंट में बनते हैं. आपको बता दूं कि वोलेटाइल ऑयल ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना. अब आप सोच लो कि 1.1% मेंथॉल के अंदर प्रेजेंट रहता है ना, कितने कम अमाउंट में मिलता है. ठीक है, उसके अलावा अगर दूसरे मेटाबोलाइट देखोगे प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो बहुत अमाउंट में है, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है प्लांट का. सेम इन एवरी स्पीशीज. प्राइमरी मेटाबोलाइट एक स्पीशीज में कॉमन है, कार्बोहाइड्रेट सब में पाया जाएगा, विटामिन्स है, लैक्टिक एसिड है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हर, क्योंकि जरूरत की चीज है जो जो उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए. Whereas secondary metabolites are derivatives of primary metabolites, so they are like एक अलग एक स्पीशीज की तरह से एक स्पीशीज में, एक फैमिली में, एक जेनरा में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, जैसे ग्लाइकोसाइड एक स्पेसिफिक कैटेगरी में है प्लांट में, अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स एक अलग है, फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग ड्रग अलग है, टेनिन कंटेनिंग ड्रग अलग है, राइट. Example of primary metabolites are carbohydrate, vitamins, and example of secondary metabolites are phenolics, steroid, antibiotic, pigments, etc. Clear? Any doubt till here? If you have any doubt, please tell me. No, ma'am.